Abhishek, I have one last question for you here. Abhishek, we have all seen you in movies like Guru, Bluffmaster, and those were loved by the audiences as well as the critics, and you were the lead in all those movies. So I just want to ask you कि हम आपको as a lead कोई upcoming आपकी movies में देखने मिलेंगे वापस आप हमें? I hope As a so. lead. If you have a nice script, I'll be more than happy to read it. Yeah. I didn't understand your question. Because no, I'm just asking you, would we see you as a lead in any upcoming movies of yours? I'd love that, yeah. As a lead, like a solo actor. As the only person in the film? Yeah, as the male lead, yeah. What? As the only person in the film, it'll be a very boring film. I'm saying male lead. It'll be a selfie film. Huh? Just take my camera and shoot 3 the घंटे film. तक ऐसे घूमने का. Abhishek, I'm saying as a male lead. As a Not the only main person. lead. Male lead. Male. Yeah. So I act like a female right now or what? I mean, I'm not understanding your question. Sir, like in Guru and Bluffmaster, you were the lead actor. In Bluffmaster, I had a wonderful co-actor called Right, Ritesh right, Deshmukh but and the- Paman but the Irani. movie- but the In Guru, I had wonderful co-actors like Mithun Da, Maddie, Aishwarya and Vidya Balan. What are you trying to say? No, I'm just trying to say, like, you were the lead actor in that movie, right? So I'm just. I don't think so. I don't look upon films like that, sir. You have to understand. My definition is slightly different. I believe anybody, no matter how big or small their role, is equally responsible for the film and in the success or the failure. I don't like to differentiate just based on the size of the role. If you look at the film that we're talking about right now, we're here for Houseful. It's a wonderful franchise. The most popular character of the Houseful franchise is Chunky, who shot for 3 days in the film. Aakhri Pasta got the biggest recall in the Houseful franchise. So the size of the role shouldn't matter. I think I've understood where you're trying to go with this. I'm not asking you in a negative way. I'm just No. Why would I think in a negative way? Unless you are, I'm not. I just feel that every actor should be given the love and respect as his fellow actor. So I've never believed in this word of solo male lead. For me, a solo film is when you're doing it alone, just you're the only person in the film. Because I think I share the platform with all my actors and they're all wonderful. Having said that, I understand what you're trying to say, that am I going to be carrying on doing multi-starters? Is that what you're asking? Like an ensemble piece? Is that what you're asking? Yeah, maybe, but I am also asking, would we see you as a male lead also, apart from multi-starers also? No, I've not understood your question. I'm just asking you, would we see you, like for example in in Guru, you were the only lead actor. No, I wasn't the only lead actor in Guru. Okay, Mithun Da and Madhavan were male actors in that as well. I've not understood your question. मुझे समझ भी नहीं आया. I think you have answered, Abhishek. Okay. Thank you. Mahisha, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Srishant? And also before hitting the World Cup winning 6 over long off. Long on. नहीं, जहाँ तक 2007 वर्ल्ड कप के कैच की बात की जाए तो टीवी में जब मैंने देखा, वापस आने के बाद हम हाईलाइट देख रहे थे, मेरा हार्ट रेट भी ऊपर चला गया था और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे, आपने ऑफ कोर्स टेलीविजन में देखा होगा, तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब 1 बाउंड स्कोर हो गया. बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था, तो आई वाज जस्ट तो जब मिसबा ने वो शॉट खेला ना, बॉल ऊपर गया, तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, बहुत ज्यादा उसमें पेस नहीं है. तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉट फाइन लेग में, और बॉल आने के पहले ना वो 3 बार ऐसा हो चुका है. मैं बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता. Hello, Mahi sir. Sir here. Hi sir. Sir इधर. अरे ये हटना. Sir. First of all,
So first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so okay, so coming to the point, और सर आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ और ये दिस इज सवाल। डील फॉर मी। ओके सॉरी हाँ, तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल। तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया, प्रेशर, तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ है, तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, इट्स ऑलरेडी टू लेट, यू नो। अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे, थोड़ा आप मिस करोगे, थोड़ा भूलोगे, बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर। दैट्स व्हाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ, जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं यही बोलता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहे और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहे। ऐसा नहीं कि लास्ट 2 महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी 9 महीने 10 महीने में हम कुछ भी नहीं करें। और जहां तक मेरे लाइफ की बात है, जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक क्लास 12th के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है, यू नो, सो हमारा मैचेस था, तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाए। मम्मी को तो पटा लिया, बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्जाम है, बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्जाम खत्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है। तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं की होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आगे क्यों? आपको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं हो रहा कि अब सबके सामने, अब पूरी इंडिया देखेगी भाई, पूरी दुनिया देखेगी अब ये फिल्म, क्या बोलते हो? It's a bit awkward, you know, to watch your own movie. You know, movie that's made on you. It's a bit awkward, to be frank. But at the same time, I felt I was not the person who was very nervous. It has to be Sushant. The reason being, you know, let's say, अच्छा जैसा बात करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ सुशांत के ऊपर प्रेशर है कि किसी मैच के सिचुएशन की बात करें कि लेट्स से हम कोई मैच हार गए, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं ऐसे बैठा रहूंगा, दो चार बार अपनी दांतों को ग्राइंड करूंगा, थोड़ा सोचूंगा, बस दैट्स इट। बट अगर सुशांत मूवी में ऐसे काम करता है तो यू कैन इमेजिन पूरे जो मूवी का ड्यूरेशन होगा वो ऐसे ही बैठा रहेगा। सो सुशांत के लिए ज्यादा मुश्किल था कि उसको बाहर निकालना है और ऑडियंस को बिलीव कराना है कि मैं अंदर से ऐसा फील कर रहा था, जिसके लिए इसने मुझे बहुत कुरेदा है कि उस समय कैसा फीलिंग था, इस समय कैसा फीलिंग था। मैं बोला यार तुम सवाल ही पूछते रहते हो। रियलिटी है कि मैं नहीं, रियलिटी है कि हमने बहुत कम टाइम स्पेंड किया साथ में, बट इसने जिस तरीके का एफर्ट डाला है, क्योंकि एक पार्ट क्रिकेट भी था, तो ऑफ कोर्स हर कोई हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, बट जब स्क्रीन में आपको प्रेजेंट करना पड़ता है तो आपको सर्टेन चीजें सीखनी पड़ती हैं, स्पेशली अगर क्रिकेट से रिलेटेड हो तो क्रिकेटिंग शॉट्स वगैरह खेलने पड़ते हैं। सर हेलीकॉप्टर शॉट सर। मेरा सवाल आपसे है, इज देयर एनी आइडिया वेरी सिद्धू जी? आई डोंट नो। Okay. ये आपका शो है, आपको पता होना चाहिए जी। हमने सुना है कि आपके शो में AR रहमान आए थे, वो काफी नाराज। स्टेज पे आएंगे आप? आपके पास आप ट्विटर पे हैं? हाँ जी। अभी चेक करिए, यार रहमान ने कुछ ट्वीट किया है। हाँ ट्वीट किया, लेकिन वो अली असगर और आप कुछ अभी भी 2G पे चल रहे हैं अभी भी? 3G है मेरे पास है? पता नहीं क्या कुछ किया आप लोगों ने ऐसा जो कि वो आप लोगों से इस शो से आप ये किन्होंने कहा था आपको ये बात? आप गूगल पे जाके देख लीजिए, उनके ट्वीट पे मैं भी तो सेम ही बोल रहा हूँ, ट्वीट पे जाके देखिए, उन्होंने हमारे बारे में ट्वीट किया था ऐसा? हाँ नहीं एक नाराज सेकंड, हैं वो, ओके आप लोगों आई के विल। शो से। डॉक्टर साहब जरा जाके दिखाइए प्लीज, जूम करके। Hello everyone, my English is weak, so
Give me some discount. But it is A.R.Rahman with a tick. Blue tick है and I feel it is original. He writes, thank you Kapil and team. कपिल ये टीम ये दो लोग हैं, अब 2-3 लोग वैन में बैठे हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया था, वो भी आ जाएंगे. फॉर द रिस्पेक्ट एंड मेकिंग अस ROFTL. ये कोई गाली तो नहीं है भाई? ROFTL ये कोई डबल मीनिंग बात तो नहीं है? ROTFL. हाँ बस वही. रोलिंग ऑन द फ्लोर. तुम्हारी इतनी इंग्लिश कब से अच्छी हो गई भाई? हैं? एंड ही सेज आई हैव बीन गेटिंग सम क्रेजी फीडबैक. क्रेजी मतलब ठीक है? बहुत ज्यादा. और उन्होंने एक लाइन और भी लिखी है, वो मिसिंग है. एंड आस्क दिस स्लीक गाय वेयर यू हैड दैट न्यूज. ही इज आस्किंग भाई इतने सीरियस क्यों हो गए? किसी की रस्म की रह पे आए हो, थोड़ा खुश रहो जिंदगी में. क्या क्या लेके जाना है आपने? माइक तो रखो आप. इनके दांत में कीड़ा लगा हुआ है इसलिए ये स्माइल नहीं करते बड़े वाले. आई विल डू योर इलाज, कम टू मी एंड आई लव यू टू. यार तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, तेरे को मैं खा जाऊंगा मेरे भाई. ऐसा क्यों कर रहे हो आप? व्हाट इज योर नेम? अरुण कुमार. कैन वी हियर फॉर मिस्टर अरुण कुमार? ये मेरे बंदे मैंने रखे हुए हैं पीछे. अच्छा, मैं हमेशा हम जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मुझे ये लगता है कि सर हमारे जो मीडिया के लोग हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं. और मैंने ये पर्सनली देखा भी है, क्योंकि आप लोग थोड़ा कैमरा के पीछे रहते हैं, कभी सामने नहीं आते. लेकिन कुछ एक हमारे ऐसे दोस्त हैं मीडिया से जिनको ये लगता है कि बहुत अच्छे एक्टर हैं या परफॉर्म कर सकते हो. आलोक, आपका तो मुझे पता है, आपकी खुराफात तो चल रही है अंदर से कि काश मुझे डायना के साथ थोड़ा डांस करने का मौका मिल जाए. मैं समझता हूँ मेरे भाई हो तो मर्द ही ना अंदर से. अच्छा, अरुण जेटली जी, अरुण कुमार जी, आप आओ ना 2 मिनट. आओ, आपको खोलते थोड़ा. अरे आओ, सारी उम्र जर्नलिस्ट रहना क्या? अरे 2 सेकंड के लिए आओ अरुण. कम 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 कम. इनके घर में पता नहीं कौन सा गूगल आता है जहां से ये पढ़ के आए कि ये रहमान नाराज गए. आइए जरा. पायरेटेड गूगल यूज करने वाले जर्नलिस्ट, आए हो जरा. हेलो. अच्छा अरुण, कम कम. आपको आ जाओ लोग, आप भी आओ. क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना दूर दूर जाके आप रिपोर्ट्स इकट्ठा करते हो, फिर हम सब लोगों को जागरूक करवाते हैं कि क्या क्या हो रहा है मार्केट में. हालांकि एक न्यूज से मैंने आपको जागरूक करवाया कि ये भी हुआ है. तो आप इतना सीरियस क्यों रहते हैं? कहाँ सीरियस हूँ मैं, तो बस ऐसे ही सवाल आया, सवाल पूछ लिया. मैं इतना सीरियस तो अभय देओल नहीं है, तो आप तो. अभय देओल जी तो चिल कर रहे हैं, मैं कहाँ. पर मैंने देखा आपने 4 सवाल पूछे, उसमें से 5 आपके रिजेक्ट हुए. तो आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, मेरे सवाल रिजेक्ट नहीं हुआ. मेरे सवाल ऐसे क्यों कर रहे हैं? एसिडिटी की प्रॉब्लम? सभी ने मेरे सवालों का जवाब दिया, कुछ भी रिजेक्ट नहीं हुआ. रिजेक्ट तो आपका सवाल किया गया. आम कैमरे पे झूठ. आप कौन से पेपर से हैं? बिजनेस ऑफ सिनेमा. बिजनेस ऑफ सिनेमा से. पर नहीं, आप वैसे ब्रदर हंसी मजाक किया करो थोड़ा. मैं सीरियस कहाँ हूँ? आपको पता है आप सीरियस हैं, इसीलिए आपकी छाती के बाल ग्रो नहीं कर रहे हैं थोड़ा. आपको पता है मेरी उम्र कितनी है? आपको पता है मेरी एज कितनी है? शादी के लायक तो होगी लगती मुझे. अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए. अभी कितनी है? अभी 20. 25 क्यों ना, फिर सवाल पूछा करो. इतनी क्या जल्दी आपको? सवाल ही पूछते रहे, सवाल ही. पर मुझे आलोक, आप मैं प्लीज, मुझे पता है आलोक के अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंटेड आर्टिस्ट है. आलोक कम. डायना, ये देखो कौन सा जर्नलिस्ट ऐसे कपड़े पहन के आता है. ये बंदा इसके अंदर है. आनंद सर, इसके अंदर आर्टिस्ट है एक. आइए. अच्छा, इनको देख के ना मुझे ओशो की याद आ जाती है. डायना, मैं चाहता हूं कि अपने हैप्पी भांजा के एक रोमांटिक ट्रैक पे ना आलोक आज देखना चाहिए आपके दोस्तों को भी कि आपके अंदर कितना टैलेंट है. तो आपने इम्प्रॉम्प्टू रोमांस करना है आज. भावना कहाँ है? अरे यार, भावना, हमारी भावना को तो समझो प्लीज. आप भी अच्छा, ये देखो कितना खुल गया अभी सडनली, है ना. बड़े भाई की शादी में नहीं आया जैसे, लेके आओ भावना को. आप क्यों भावना के पीछे इतना इंसिस्ट कर रहे हैं? कम भावना. सो ब्यूटीफुल मीडिया. देखो ये जर्नलिस्ट अच्छा है, वो अच्छा है. देखिए सब अच्छे हैं. मैं आपको बोलता हूँ कि है
जब आपको पता है इतनी खूबसूरत लड़की मैं आपसे बात ही नहीं करने वाला वैसे ही